on this course of discovery, I have the pleasure of introducing our inaugural panel. Ladies and gentlemen, join me in warmly welcoming our inaugural panel to the dais as they begin the summit by lighting the diya. For our overseas friends in India, on auspicious beginning, it always by lighting our diya. Mr. Siddharth Sanyal, Chief Economist and Head of Research, Bandhan Bank, every step moves the summit, eternally grateful. Mr. Amit Ray, Rakesh Shah, Manish Mehta, Sunil Jain, Marfan Thanewala, Arun Anand, Raju Venkat, Vinay Agarwal, and Mr. Pradeep Banerjee. These are the gentlemen who have curated this conference for the last 14 years. And I take this opportunity to thank the industry colleagues who have found value in our endeavor and have attended this edition all through the 12 years, 11 times, 10 times, 9 times, 8 times. We have to identify the synergies now, since the brand owners and the customers remain the same. A new panel again with the new age FMCG brands, the new companies in this sector who have just started and how they see packaging, very young companies. Now, I invite everyone to participate actively over the next 2 days. Dive deep into all these shifts, but ultimately find your own balance. We are guided by our brilliant minds of our dear steering committee to an exciting learning experience. The objective of the summit is not only to discuss but to inspire, to culminate these 2 enriched days with new solutions and fresh opportunities. This year, with the core committee's guidance, we have tried to make the content the cake, very intensive and very focused. Not only limited to the conventional discussion, but expanding into newer domains. You will look at the program and it will speak for itself. Engaging not only technocrats, but also brand owners, multinational companies. The Indian economy is growing fast. We all expect that this will last, even if tariffs stay high. This economic growth can propel the industry to newer heights. Double-digit growth is within your sights. In many industries, you play a role, so rapid growth is an achievable goal. In packaging, plastic much less energy was used and plastic waste was reduced. If suppliers and users collaborate, the outcomes can be truly great. With intelligent solutions, nothing's lost. It's now time for the first break, before which we'd once again like to thank all our dignitaries on the dais. But firstly, we'd like to also thank Audience, that's our associate partner, and we'd like you to enjoy this 30 minutes break of tea and coffee. Once again, ladies and gentlemen, 6 running tea coffee counters are there. At the stall area, we've got 3, and at the pre-function area, we've got 3 of them. So go ahead, enjoy your tea, coffee right away. We've also got the beverage location for all of them. Thank you so much. ये हमारा 12th edition है. So shall I speak in Hindi or English? Okay. So this is the 12th edition of this conference. इस साल हमारे पास 2200 लोग आए हैं. 12 to 2200 people have registered to come, and 25 countries से लोग आए हैं. 25 countries including India, and about 800 companies से people are representing. So इसमें एंटायर जो वैल्यू चेन होता है अपना पैकेजिंग का, द एंटायर वैल्यू चेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, रिलायंस, IOCL, जो दाना बनाते हैं कंपनीज, फ्रॉम टू दैट टू द कन्वर्टर्स, जो कन्वर्टर्स होते हैं जो उस दाने को कन्वर्ट करते हैं, जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, नीलकमल, ये सब लोग दाने को पैकेजिंग में कन्वर्ट करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स द मशीनरी मेकर्स, मशीन तो लगती है, दैट इज़ द मेन एलिमेंट. द ब्रांड ओनर्स जैसे जितने भी हमारा आपके FMCG कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, आपके हाइजीन की कंपनीज़ हैं, फूड कंपनीज़ हैं, जो पैकेजिंग यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट हियर. आपने देखा कीनोट में बिस्लेरी के CEO हैं, रिलायंस रिटेल के CEO हैं, गोदरेज, मिस्टर गोदरेज हिमसेल्फ, मिस्टर नादिर गोदरेज हिमसेल्फ. सो वो सब लोग मतलब दे टेल द ऑडियंस कि वो पैकेजिंग को कैसे देखते हैं, बिकॉज हर चीज़ में पैकेजिंग है. आप मतलब बिना पैकेजिंग के कुछ, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ विदाउट पैकेजिंग.
चाहे आपका फूड का मटेरियल है, चाहे आपका हेल्थ केयर है, चाहे आपका मेडिसिन है, आपकी पैकेज, एनीथिंग टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज हाइजीनिक पैकेजिंग लगता है. सो आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट समिट है. इतना बड़ा समिट कहीं दुनिया में नहीं होता है. एंड आई थिंक वी आर प्राउड कि इंडिया इज़ होस्टिंग अ समिट फॉर 25 कंट्रीज़. एक साथ इतनी बड़ी गैदरिंग, लोगों को कलेक्ट करना, इंस्पायर करना और लोगों को मैसेज देना, नई कंपनियों को भी इनवाइट करना, तो कैसे आप मैनेज करते हैं सब चीज़ें? बैक टू बैक इवेंट भी आपको इतने नहीं है हमारे इतने नहीं है हमारे. एक्चुअली 3 होते हैं एनुअल, सालों से चले आ रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ द 12th एडिशन. एक हमारा ये 12th एडिशन है. एक रिजिट का होता है, वो 11वां एडिशन था हमारा. एक विनाइल इंडिया है, वो दुनिया का तीनों दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंसेस हैं. सो हम और ज़्यादा ऐड नहीं करते, क्योंकि एक साल में 3 ही करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं और बेस्ट हैं. सो हम इसी को मेंटेन करना चाहते हैं. हम इतने ज़्यादा ना करें कि फिर थिन आउट हो जाता है, वो भी नहीं रहता है. लोग वेट भी नहीं करते कि अरे इनका तो हर तीसरे दिन आ जाता है. वैसा नहीं करते. हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए जितने आपको वर्ल्ड लीडर्स मिलेंगे, सबके कैलेंडर पहले से ब्लॉक्ड होते हैं कि एलीट प्लस की कॉन्फ्रेंस में इंडिया जाना है. तो वो उनके कैलेंडर में आपको दुनिया भर में मिलेंगे. आपको कहीं किसी से भी पूछिए आप, क्योंकि साल प्रति साल वी हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू. आपने देखा होगा, हम आपके मतलब पहली बार ही आप लोग के पास आए पीछे, हम कभी मीडिया में गए ही नहीं. सो वो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, लोगों को साल में ओवर द ईयर्स पीपल हैव कम टू नो कि ये कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है. आपको सारे वर्ल्ड लीडर्स आके बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए. आप अपने बिजनेस में कौन सी चीज़ें जो हैं उनको आप बढ़ोतरी दें, किस चीज़ से आपका बिजनेस बढ़ेगा, व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. जैसे आजकल आपने देखा है, ट्रम्प साहब हर दूसरे दिन कोई ना कोई लगा देते हैं, कोई इंडिया के ऊपर, किसी के ऊपर. जो हमारे ये XRB आए थे मिस्टर सान्याल, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि इंडिया को इस सिचुएशन में, जहाँ पर रशिया है, USA है, चाइना का भी मोदी साहब चाइना से मिलके आए हैं जीपिंग से, हमारी इंडस्ट्री को कैसा उसका इम्पैक्ट होगा. क्योंकि हमारे इतने लोग, जो 2200 लोग हैं, उसके अंदर सब फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं. मतलब फैमिली ओन्ड का मतलब होता है, एक तो होता है ना MNC, जैसे MNC होता है, जैसे HUL है, हिंदुस्तान लेवर्स लिमिटेड है, वो एक MNC है, मतलब एक प्रोफेशनल कंपनी है. उसका ओनर एक बंदा नहीं है. अगर आप गोदरेज देखेंगे, उसके ओनर फैमिली है. अगर आप मैरिको देखेंगे, हर्ष मारीवाला सर खुद आए थे, आपने देखा, मैरिको के ओनर हैं, वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है. आप देखेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है. डाबर देखेंगे, फैमिली ओन्ड बिजनेस है. तो 2 टाइप के बिजनेसेस हैं. सो ये जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत है फैमिली ओन्ड, मोस्टली फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं. आपने देखा, हर्ष मारीवाला ने एक स्पीकर सेशन बताया कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस को सक्सेशन प्लानिंग कैसे करनी चाहिए. क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है, वो लोग अपना अलग, हाउ द जेनजी इज़, राइट, दे वांट टू गेट इनटू न्यू एज काइंड ऑफ AI करना है, उनको अलग करना है. लेकिन अगर इस बिज़नेस में आगे जाने का है, तो हम क्या नई तरीके की चीज़ें लाएं. जैसे अगर आप हमारे साथ 2 दिन बनेंगे, तो हम शार्क टैंक्स, आपने सुना है शार्क टैंक्स, उसके विनर्स को लेके आए हैं. बच्चे हैं वो लोग. मतलब आई ऑल्सो थिंक दैट मेरे सामने भी वो बहुत यंग है. वो 5 लोग हम उनको लेके आए हैं, हमारी इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं, ग्रीन एनवायरमेंटल से. उनको शार्क टैंक की फंडिंग मिली है. उनके पास एक आइडिया था. यंग पीपल, एकदम यंग, 25-26 साल के लोग हैं. उन्होंने अपने आइडिया को आगे उसको नर्चर किया, उसका एक बिजनेस केस बनाया, और शार्क टैंक ने उसको वो कर दिया, फंड कर दिया. आपने जैसा जिक्र किया कि डाबर है, गोदरेज जैसे ब्रांड कंपनियाँ, लेकिन जैसे कि मोदी जी का एक सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके न्यू वेंचर जो लॉन्च कर रहे हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहिए, आपको सबमिट माना चाहिए. हमारे बहुत इसमें जो आपको दिखेंगे ना, एक तो बड़ी कंपनीज बहुत है जो फैमिली ओन्ड है, बड़ी बताई मैंने आपको. एटलीस्ट 50% ऑफ द कंपनीज आर SMEs एंड MSMEs हैं वो लोग, जिनका टर्नओवर इज़ नॉट एट द रेंज ऑफ जो बड़ी कंपनीज है. हमारी इंडस्ट्री में ये कन्वर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है. क्या लगता है इसके अंदर? 2 मशीन लगानी होती है. इट्स वेरी सिंपल. मशीन लगानी है 2, मतलब मैं लगा लूँ 2 मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैन पावर आपको स्किल्ड चाहिए. सिपिट के ओनर यहाँ पर बैठे हैं, उनके 60 लोग लेके आए हैं वो अपने, ताकि यहाँ पर ट्रेन हो जाए बराबर से. सिपिट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, वो ट्रेन कर देते हैं स्किल्ड. मशीन लगा ली, वहाँ से स्किल्ड मैन पावर ले लिया. माल तो मिल ही जाता है, रिलायंस दे देता है, IOCL दे देता है, HMEL दे देता है, डाओ दे देता है, सब लोग दे देते हैं. सेट है बिजनेस, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा इनोवेशन की ज़रूरत है. जैसे आप ये बोलें कि आपका जैसे जो पैकेट है, आपका जो जैसे चिप्स का पैकेट है, या आपका जैसे
जैसे आप शैम्पू का पैकेट है, राइट, आपने वो देखा है, वो एक एरोप्लेन के अंदर वो पेपर बोट का एक मिलता है जो पीने का मिलता है ना, वो उसका कौन सा पानी आता है, एक पैकेट आता है उसका, वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि हल्का सा खोलने से वो पूरा पैकेट पी के आप छोड़ देते हैं। वो आपने देखा है पेपर बोट का इस टाइप की न्यू एज की पैकेजिंग आ रही है आजकल। किस तरीके से हम इस तरह की पैकेजिंग करें कि आपका जो अंदर का, आपने हल्दीराम ने बाहर एक स्टॉल लगाया हुआ है, हल्दीराम खुद आए हैं, यू नो दे हैव कम हिमसेल्फ, उनको दिखाना है इंडिया को कि हमारी भी पैकेजिंग, सब यहाँ पर बड़ी ब्रांड्स के लोग आए हुए हैं, मैरिको है, HUL है, सब लोग हैं, लॉरियल है, सब लोग हैं। हल्दीराम क्या पैकेजिंग देखिए, कोई कम नहीं है वो पैकेजिंग, हमारे इंडिया की कंपनी है वो, और वो इंडिया की कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं वो लोग। आप देखो किस किस कंट्रीज़ में अपनी पैकेजिंग लगाई हुई है। कल आ रहे हैं अमूल के CEO मिस्टर मेहता आ रहे हैं, राइट, आपने अमूल सुना है, राइट? अमूल ने, हमारा अमूल कितना पुराना कंपनी है, अहमदाबाद अपना गुजरात का, राइट, आनंद का, राइट, एक कोऑपरेटिव है। वो अमूल ने आज की दुनिया में कनाडा, अमेरिका, यूरोप, वहाँ जाके धावा बोल दिया है। तो मतलब इसको बोलते हैं, कल की प्रेजेंटेशन आपको टाइम मिले तो आप सुनिएगा। इंडियन कंपनी जाके वर्ल्ड को कॉन्कर कर रही है, किस बेसिस पे? पैकेजिंग के बेसिस पे, क्योंकि वो मिल्क है, वो ख़राब हो जाता है, उसका बटर मिलता है, जो भी मिलता है वो ख़राब हो जाता है ना, उसको उसी टाइम में कंज्यूम करना होता है। पैकेजिंग के हेल्प से उन लोगों ने उसकी लॉन्जिविटी कर दी है कि उसका कंट्रोल भी रहे उसकी क्वालिटी के ऊपर, और वो बाहर जाके बेच रहे हैं, आप यूरोप में जाके बेच रहे हैं। मतलब हम, उसका जो टॉपिक है वो है कि इंडिया रूलिंग द वर्ल्ड, वो अमूल का टॉपिक है। सो मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम बिल्कुल सही टाइम पे हैं, जैसे मिस्टर सान्याल ने बताया, इंडिया का ही टाइम है अभी, दिस इज़ इंडियाज़ टाइम। और हमारी जो इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ है वो इंडिया की GDP से ग्रोथ से ज़्यादा है, बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है हमारा, 8% है, हमारी ग्रोथ 10% पे जाती है, बिकॉज हर चीज़ में पैकेजिंग चाहिए। कोई भी चीज़ आप देख लो उसमें पैकेजिंग चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक की पैकेजिंग है, चाहे पेपर की पैकेजिंग है, किस मर्जी की पैकेजिंग है। पैकेजिंग के बिना आप हाथ नहीं लगाओगे, बाहर कोई बेच रहा आप नहीं हाथ लगाओगे। अगर वो पैकेट में बराबर से सील्ड हो, आपको लगेगा कि आपके हेल्थ। कोविड के बाद तो पैकेजिंग का कितना फ़ायदा हो गया। आपने देखा कोविड में क्या हुआ था, मोदी साहब ने, मैं कंपनीज़ का नाम जानती हूँ क्योंकि आपने, हमारा एक, बाद में कभी बताऊँगी आपको जब अलग सीज़न होगा, लंबा जाएगा। मोदी साहब ने हमारी इंडस्ट्री को रीच आउट करा था कि आप पैकेज बना के, हमारी प्लास्टिक पैकेजिंग से पैकेजिंग करके उन एरियाज़ में खाना भिजवाओ जहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स में जितने भी आपने देखा था, वो जो डॉक्टर्स पहन के जाते थे और वो PP किट नहीं पहन के जाते थे सब लोग, वो सारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, ऑल ऑफ दैट इज़ फ्लेक्सिबल। कितनी जानें बचाई हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग ने। तब आपने देखा ये जो होता है ना कि ख़राब है प्लास्टिक, वो सब है, वो कम हो गया कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में देखा लोगों ने कि प्लास्टिक पैकेजिंग से जानें बची, खाना मिला सबको, हेल्थ बराबर रही सबको, डॉक्टर्स बराबर रहे, इंजेक्शन, ये सब लोग, सब प्लास्टिक हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जाता है। वो सब PP किट्स जो है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के। सो आई एम सेइंग कि तब दुनिया की आंखें खुली कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि आपको दूसरी ऑल्टरनेटिव देखोगे वो इतनी महंगी, आप बल्क में ले ही नहीं सकते। यू हैव टू बी वेरी, आपको कॉस्ट भी मेंटेन करनी है और क्वालिटी भी करनी है, वो हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से ही हो सकती है। आपका ये नए जो आपके जो बच्चे लोग होते हैं ना, जो आजकल की इंडस्ट्रीज़, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, राइट, और उनको फास्ट चाहिए, हमारी तरह नहीं है कि लगे हैं, वैसा नहीं है, दे वांट रिटर्न्स वेरी फास्ट, राइट। तो आप कल शाम का एक सेशन है, न्यू एज कंपनीज़, अलग अलग, मतलब एक बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, उनको कोई नया आइडिया। अब एक पिज़्ज़ा इन अ कोन, अब पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाते हैं बड़ा वाला पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा कोन में कौन खाता है? पर उनका ये मतलब है कि जब घर में पिज़्ज़ा आता है तो इतना बड़ा आता है कि आपको बैठ के खाना पड़ता है। आजकल के नई यंग, ये देखो मैडम एकदम यूथ में है, इनको किधर टाइम है कि वो बैठ के पिज़्ज़ा खा के बैठेंगी, हम जैसे लोग बैठेंगे। इनको चाहिए कोन में पिज़्ज़ा चाहिए, टेस्ट वही चाहिए, क्वालिटी वही चाहिए, सब कुछ वही चाहिए, बट ऑन द गो, उठाया, जैसे आइसक्रीम खाते हैं, पिज़्ज़ा खाया और चल पड़े। ये पैकेजिंग का कमाल है। एंड आई वुड लाइक टू से, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी काइंड। मोदी जी का मैं थैंक यू बोलती हूँ कि हमारी, अब देखो 25 कंट्रीज़ के लोग, कौन अपना सब काम धाम छोड़ के, और हेड्स हैं कंपनीज़ के, सर ऐसे नहीं है कोई मिडिल मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, ओनर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, सब लोग आए हैं इधर। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको इंडिया का मार्केट दिखता है, उनको दिखता है कि इंडिया का मार्केट का ग्रोथ 10% है, यूरोप बहुत ख़राब है, यूरोप की हालत 2-3% से, या तो 1-2% से ज़्यादा नहीं है। अमेरिका, ट्रम्प साहब क्या करेंगे वो पता नहीं, वो ट्रम्प साहब ही जान रहे क्या करने वाले हैं। ग्रोथ जो है वो इंडिया में है। सब लोग ये जो आपको सब फॉरेनर्स दिख रहे हैं ना, इन लोगों ने या तो इंडिया में मशीनें लगाई हैं, कंपनीज़ लगाई हैं, या ये इंडिया का माल बाहर लेके जाते हैं। हमारी इतनी, आप जिगीश दोषी देखना, इतने लोग हैं, ये SRF है, प्रशांत मेहरा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, कि यूफ्लेक्स है,
कितनी इन्होंने प्लांट्स बाहर की कंट्रीज में लगे। विनय अग्रवाल है, क्रिएटिव है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबने इंडिया की कंपनीज ने बाहर प्लांट्स लगाए हैं। मान की बात है ना सर कि हम अपने प्लांट्स बाहर लगाते हैं। हमारी कंपनी, हमको तो बहुत मान है इस बात का कि हमारी कंपनी में आओ, आपका आओ भगत है, प्लीज़ कम, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम बाहर जाके लगाएं, हम आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और हमारा माल बाहर बिक रहा है। बहुत आई फील दैट दिस इज़ अ ह्यूज इंडिया का प्राइड मोमेंट है ये, और बहुत बढ़िया बात है कि हम इस टाइम पे यहीं पर हैं, सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। अभी किसी भी कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड में 2200 लोग कभी नहीं आते, और ऐसे नहीं आते, फ्री फंड के लोग नहीं है ये लोग, टिकट खरीद के आते हैं। क्योंकि फ्री फंड का चक्कर होता है कि लोग सीरियस ही नहीं होते। आप टिकट दे दो जी सर, आपने इधर आना है, आप कौन आएगा बताओ, कौन अपना काम धाम छोड़ के आएगा। अगर उसको लगेगा कि अरे स्पीकर्स बढ़िया है, सब कुछ है, तो आते हैं। तो जहाँ पर फ्री फंड का माल हो तो मतलब नहीं है। सीरियस बंदा है, अपना काम धाम छोड़ के तब आएगा, वैल्यू दिखती है तब आएंगे। आपने बोला ना इतने लोग कैसे जमा होते हैं, 15 साल लगे हैं सर, 15 ईयर्स, डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर डे। और हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ है। ये सब 25 कंट्रीज़ के लोग बाहर जाते हैं, फिर ये अपने सब लोगों को बताते हैं कि ऐसा होता है, फिर वो और आते हैं लोग। तो गॉड इज़ काइंड, आप लोग काइंड है, मोदी जी काइंड है, लगे रहें, इंडिया इज़ द बेस्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। बेल्स मुझवा चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, और इस अवार्ड का जो मकसद है वो क्या है, इस बारे में दोबारा बोलेंगे इस सर? अवार्ड का क्या मकसद है और आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है? सर अगले 2 दिनों में हमने 5 चीज़ें डिस्कस करके उसका कुछ जेनेसिस निकालना है। एक तो ये निकालना है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, जो बोलते हैं ना लोग कि प्लास्टिक का वो रहना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल हो जाए, मतलब वो एनवायरनमेंट में ऐसे गिरे नहीं, बाहर जैसे पैकेट होते वैसे नहीं, उसका ना एक कॉस्ट होता है। तो वो कहाँ पर बैलेंस बैठता है, क्योंकि अपनी जेब से कोई कॉस्ट देगा नहीं, वो कस्टमर को डालेगा, वो कहाँ बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिटेल वाले सर थे ना, के सर ने क्लियर किया, उन्होंने ब्रांड ओनर बोलता है कन्वर्टर देगा, कन्वर्टर देता है, ब्रांड ओनर देगा, कोई नहीं देगा, कस्टमर को देना पड़ता है। वो बैलेंस हमको निकालना है सर, तब पता चलेगा कि आगे कैसे ग्रो करेगी। रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी हर एक कंपनी का गोल हो गया है अभी, वो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको सस्टेनेबल और उसको प्रॉफिटेबल कैसा करना है, उसका बिजनेस केस कैसे बनाना है, वो बताने वाले हैं। तीसरा ये है कि जो यंग जनरेशन है वो हमारी इंडस्ट्री को न्यू एज पैकेजिंग कैसे दिलाएगी। वो नए जो यंगस्टर्स हैं उनको अलग तरीके की पैकेजिंग चाहिए होती है, उनको बड़े बड़े वो नहीं चाहिए होते, उनको अलग अलग पाउचेस चाहिए होते हैं, यंग एज वाले बताएंगे सर। देन हमारा अगर किसी को नया अपना बिजनेस डालना है, छोटा मनी देके, वो जैसे हमारे शार्क टैंक के लोग हैं, वो बताएंगे कि नए आइडियाज़ को फंड कैसे करना है। वो फंड वाले लोग भी हैं, शार्क टैंक वाले लोग भी हैं, उससे आपको आइडिया को आपका मार्केट में कैसे लेके जा सकते हो, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा सर। क्योंकि अगर आपको फंडिंग करने वाला कोई मिल गया तो आपका आइडिया जाएगा ना मार्केट में, अपना पैसा कौन लगाता है। और सर ब्रांड ओनर्स आए हैं बहुत, ब्रांड ओनर्स ये बताएंगे कि उनको हमारी इंडस्ट्री से पैकेजिंग कैसे चाहिए। सो आई थिंक ये ओवर एंड ओवर पूरा आपका पैकेजिंग का एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स अपने रेजिन वाले तो हैं ही हैं, अपने इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, हिंदुस्तान HMEL है, अपना डाओ है, लॉन्डेलबर्जल है, सारी कंपनीज हैं। वो बताएंगे कि रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिए उनके दाने ने, उनका दाना होता है ना, वो किस तरह के अपने ग्रेड्स बना रहे हैं ताकि एकदम से रिसाइकल हो जाए। पूरी दुनिया का नॉलेज सर यहाँ पर है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दुनिया इकट्ठी है। इसको बोलते हैं ले लो दुनिया मुट्ठी में, धीरूभाई अंबानी बोलते थे ना पहले, वो कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो 501 का जो स्कीम चलता था वो वाला है सर, रिलायंस मोबाइल, वो CDMA वाला जो होता था। सही है सर, आपने भी यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक